Hello students, welcome you all in the next lecture, that is lecture 8, and you know that in lecture 7 I started your supplementaries first chapter. Its name is A Dream of a Surgery. It is written by James Herriot, and these are the main characters of this we can say this chapter. Tricky, the name of a dog. Mrs. Pampery, the owner of the dog. Mr. Herriot is a veterinary surgeon. Okay, with this I told you that Tricky was a dog and Mrs. Pampery was the owner of the dog. She is taking care too much of the dog and she is always providing good quality of food. Many arrangements are there. Okay, as you read the textbook, actually I am just teaching you without textbook. So whatever the micro things, means which type of coats or raincoat or overcoat and which color bowls she used to give the dog, you read from the textbook. Okay, because I am teaching you without textbook, I don't have the textbook. See, so students, see, the story I told in the previous lecture is that the Tricky of the dog of Mrs. Pampery, and whenever she, as I told you, the Mrs. Pampery was very rich and she is used to give all the good things to the dog. She is thinking that the dog is suffering from malnutrition. That is why she started to give extra food in between the meals, that is chocolates and some Horlicks and some other snack. Okay, she started to give. And one day, Mr. Herriot and Mrs. Pampery met while walking. And Mr. Herriot warned Mrs. Pampery that please cut down the food of the dog and increase the proportion of water in its diet and increase the amount of exercise also. And Mr. Herriot asked Mrs. Pampery that are you giving the exercise to the dog? So she said that I used to give the exercise, you know that every day the dog is walking with me and my gardener, okay, its name is given, एक second, Mr. Hawking, the gardener, he is playing throwing ring game with the dog. But nowadays my gardener is suffering from the back pain, so he is only taking the rest. So my dog is only walking with me. That much of exercise we are giving to Tricky only. But Mr. Herriot warned Mrs. Pampery that increase the amount of exercise and proportion of water in the diet of the dog. Otherwise you have to be hospitalize the dog very soon. उसने ऐसी warning तो दे दी. And whenever, see question students, whenever Mr. Herriot noticed the dog in her first view, जब उन्होंने पहली बार उसको देखा, the dog was bloated sausage, means उसकी skin ऐसे बहुत मोटी हो गई थी. Second, the nose was roomy. यहाँ पे कुछ आगे problem हुई थी, इसका मैं बता रही हूँ. The nose was roomy. Roomy means what? A liquid substance, sticky, we can say. Liquid substance is falling down from the nose of the dog. That is why the dog's nose is looking roomy. And parallelly, its tongue is rolled up. उसकी tongue जो थी वो jaws से बाहर थी, ऐसे लटक रही थी. Seeing this, Mr. Herriot found that there is a problem with Tricky. Tricky के साथ कुछ प्रॉब्लम हमको पता चल गया. फिर तुम लोगों को मैंने ये भी बताया था कि after a 1 week period, the dog started to vomiting and Mrs. Pampery phoned to Mr. Herriot and told him that there is a problem, my dog is continuously vomiting. So immediately Mr. Herriot came there, taken the dog with him and went to the hospital. So I told you that as the dog is belong to the rich family, that is why Mrs. Pampery has given all the things belongs to Tricky. That Tricky's coat, Tricky's toys, Tricky's balls. Okay, Tricky is having lot of balls. Every day she is she is used to give the different balls in to Tricky. So ये हम लोगों ने देखा. So whenever Mr. Herriot जब गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं ये डॉगी को अच्छा करने ही वाला हूँ. तो जब वो उसको लेके गए हॉस्पिटल में, up to 2 days the dog was just sleeping out. वो सो ही रहा था. No response the dog has given. Dog ने कुछ भी response नहीं दिया. But on 3rd day Mr. Herriot found that उसको ऐसे पता चला कि dog ने response देना start कर दिया. The dog whimpered on other dogs. उसने
बार्क किया दूसरे डॉग के ऊपर, एंड व्हेनेवर द अदर डॉग्स हैड टेकन देयर फूड, व्हाटएवर द लेफ्ट ओवर फूड इज दैट ट्रिकी जस्ट वेंट देयर एंड लिक अप ऑल द फूड. मिस्टर एलियट ने देखा कि उसको भी भूख लग रही है, उनको ऐसा लगा. मीन्स व्हाट, इट शोज द इम्प्रूवमेंट. यहाँ तक हमने देखा था, बराबर. अभी हम लोग आगे की स्टोरी बढ़ाते हैं. आगे क्या होता है देखो, इसके अंदर दिया हुआ है, soon Tricky discovered the joys of playing with the other dogs. Being bowled over, trampled and squashed, he became an accepted member of a gang, though he was a silky little thing in their shaggy group, as I told you. Mrs. Pampery used to ring a dozen times asking for updates about her pet. She wanted to know if he had cushions for sleeping and proper clothes. When she came to know that her pet was recovering, she started sending fresh eggs, 2 dozen at a time for Tricky. But the doctor and his partners enjoyed them for breakfast. This is the comedy here, students. Whenever Mrs. Pampery came to know that the dog started recovering, okay, there is a recovery in the dog. So she used to send 2 dozen of milk at a, 2 dozen of egg at a time. एक टाइम में डॉगी के लिए वो कितने एग्स भेजती थी? 2 डजन, यानी 24. नंबर ऑफ एग्स 24. तो अभी क्या हुआ देखो, इतने सारे एग्स तो वो खाएगा नहीं डॉगी, तो उसके ऊपर कौन मजे करता था? डॉक्टर और उसका स्टाफ. ओके, सो द डॉक्टर मीन्स मिस्टर हेरियट एंड हिज स्टाफ एंजॉयिंग ऑल द एग्स. थोड़े बहुत उसको देते होंगे ट्रिकी को, नो डाउट. ट्रिकी खाएगा कितना? इतनी सी जान हो कितनी खाएगी. और सारा जो है ये लोग मजे करते थे, यानी उनके भी मजे बढ़ गए. वाह, एट ए टाइम 24 एग्स आ रहे, उसमें से 2-3 भी डॉग ने खाए तो भी काफी सारे बचते थे ना, तो ये लोग उससे ब्रेकफास्ट करते थे. फिर आगे देखो, एक हंसी की बात है, आगे दिया हुआ है, when she sent bottles of wine to enrich Tricky's blood, the doctors enjoyed a couple of glass. फिर उसने क्या किया? मिसेस पैम्परी नो दैट कि डॉग का ब्लड जो है उसको बढ़ना चाहिए. देयर इज अ नीड टू एनरिच द एनरिचमेंट ऑफ द ब्लड इन द डॉग्स बॉडी. इसलिए उसने वाइन भेजना शुरू कर दिया, तो और मजे पड़ गए. जो वाइन के साथ चाहिए वो एग्स भी आ रहे थे, साथ में वाइन भी शुरू हो गई. तो स्टाफ और डॉक्टर मजे ही मजे, क्योंकि वो लोग क्या करते थे? फिर ब्रेकफास्ट के अंदर एग्स के साथ डॉक्टर ने इंक्लूडिंग द ट्रिकी वाइन लेना शुरू कर दिया. मजे ही मजे. फिर आगे और एक मजा हुआ, देखो क्या होगा. एंड देन व्हेन द ब्रांडी केम दे हैड इट आफ्टर द मील. फिर बाद में ब्रांडी भी भेजना शुरू कर दिया उसने. द लेडी हैज स्टार्टेड फर्स्ट, शी स्टार्टेड टू सेंड आउट द 2 डजन ऑफ एग्स, ओके, with wine. Then after she started to send brandy, and the doctor is used to take the brandy after the meal. रात को मस्त खाना खा लेने का ब्रांडी पी के सो जाने का, वैसे भी वहाँ ठंडी होती थी. ओके, सो डॉक्टर के भी मजे थे, स्टाफ के भी मजे थे. सो हियर दिस द डॉक्टर हियर was tempted towards Tricky. डॉक्टर को ग्रीड आ गई मन में कि ये इसको मैं अभी 1-2 महीना तो रख के लेता हूँ, क्योंकि ये फूड देते रहे कि हम लोगों का भी गुजारा हो रहा है, चलो अच्छी बात है. फिर द डॉक्टर वाज टेम्प्टेड टुवर्ड्स ट्रिकी एंड ही डिसाइडेड दैट नॉट टू वी कैन से दैट रिलीव द डॉग फॉर सम टाइम. थोड़े समय के लिए उसको छोड़ना नहीं, यही पे हॉस्पिटल में ही रखते हैं. बट द सेकेंड थॉट केम इन द माइंड ऑफ मिस्टर एलियट, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड एंड काइंड पर्सन. बहुत ही अच्छे इंसान थे. चलो फूड की लालच तो सबके मन में आती है, बट वो भी बहुत अच्छे इंसान थे. उनके भी मन में देखो, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जो माइंड की सोच है और जो हमारी साइकोलॉजी वो बदलती रहती है. सो व्हेनेवर मिस्टर हेरियट टेम्प्टेड टुवर्ड्स द फूड, उनको ऐसा लगा कि डॉग को थोड़े दिनों के लिए मैं रख लेता हूँ. बट उनको ये भी चीज़ पता थी कि मिसेस पैम्परी वाज नॉट फीलिंग गुड. शी इज वेरी अनकंफर्टेबल एट होम एंड शी इज कॉलिंग मेनी टाइम्स टू मिस्टर हेरियट. उनको ये भी पता था कि जो लेडी है मिसेस पैम्परी, वो बहुत ही दुखी है, क्योंकि शी इज अवेटिंग फॉर द डॉग. वो किसकी राह देखने के लिए व्याकुल है? बहुत डॉग की. और वो उसको रोज बुला रही है, मीन्स याद कर रही है कि मेरा डॉगी कैसा है, उसको आप अच्छी तरह से फूड दे रहे हो या नहीं. ये सारी चीज़ें वो डॉक्टर को पूछा करती थी. ये बात भी डॉक्टर को अच्छी तरह से पता थी. इसीलिए उनको जब थोड़े दिन के लिए ऐसा लगा कि मुझे तो भाई ये डॉगी को या ट्रिकी को मेरे साथ ही रखना है, क्योंकि फूड भी आ रहा है, वाइन भी आ रही है, थोड़े समय बाद ब्रांडी भी स्टार्ट हो गई, मजे ही मजे पड़ गए. इसलिए उनको ऐसा लगा कि मुझे ये डॉग को थोड़े समय के लिए मेरे पास रखना है. फिर आगे क्या हुआ देखो, मैं रीड करती हूँ. द डॉक्टर was almost tempted to keep Tricky for a longer period of time so that they
house in the name of her pet. However, the doctor knew that she was suffering without her pet. So after a fortnight, he was forced to phone and tell her to come and collect her pet. So after a fortnight is a period of 15 days. Okay, fortnight means 15 दिन के बाद डॉक्टर को मीन्स वो ट्रिकी को 15 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने उसको मिसेस पैम्परे को कॉल किया कि आपका डॉगी बहुत अच्छा है, आप उसको कभी भी लेके जा सकते हैं. As soon as Mr. Heriot called Mrs. Pampre, within a minute she reached the hospital for collecting the dog. जैसे ही उनको पता चला कि ये जो ट्रिकी है मेरा अच्छा हो गया, within minutes, टाइम ही नहीं लगा कुछ, तुरंत वो जो मिसेस पैम्परे अपनी लग्जरियस गाड़ी में डॉगों को लेने के लिए आ गई. तो देखो आगे क्या होता है. फिर जैसे ही उनको पता चला कि ये जो डॉगी वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, उसकी सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है, तो विदाउट एनी टाइम उन्होंने कुछ टाइम ही नहीं लिया और वो वहाँ पे आ गए. अभी मैं थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में से पढ़ूंगी क्योंकि थोड़े वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए देखो. All the while, Mrs. Pampre hovered anxiously in the background, reading dozens of times a day for the latest bulletins. I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly, his correct coat worn according to the weather, but I was able to hear that the little fellow was out of danger and conversing rapidly. जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि she used to ask every day कि आप मेरे डॉगी को अच्छी तरह से रेगुलर क्लोथ चेंज कर रहे हो, उसका जो बेड है उसको रोज चेंज कर रहे हो, जो मैं फूड भेज रहे हो उसको दे रहे हो, ऑल द थिंग्स. जस्ट डॉक्टर हैड रिस्पोंडेड यस, एक्चुअली ही वाज नॉट डूइंग. जो भी उसने पूछा डॉक्टर ने जस्ट से यस, उन्होंने सिर्फ यस बोल दिया, बट वो उनको कुछ भी देते नहीं थे क्योंकि उनको पता था उसकी ट्रिकी को जरूरत ही नहीं है. उल्टा ट्रिकी जितना बिंदास होगा उतना वो उसके लिए अच्छा था, ये डॉक्टर को अच्छी तरह से पता था. इसलिए उन्होंने सिर्फ उसको कन्विंस किया, मीन्स उसको बताया कि हाँ हम लोग दे रहे हैं, डॉग जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, बस वही उन्होंने उसको फोन पे वो बताया करते थे. फिर आगे क्या हुआ देखो. The word conversing seemed to do something to Mrs. Pampre. She started to bring down fresh eggs, 2 dozen at a time, to build Tricky's strength. For a happy period, my partner and I had to take each for breakfast, but when the bottles of the wine began to arrive, all the real possibilities of the situation began to dawn on the household, and it was enriched the Tricky's blood. Lunch became the ceremonial occasions with 2 glasses of wine before and several during the meal. देखो टेक्स्ट बुक में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है. इसके अंदर जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि मिसेस पैम्परे ने वाइन देना भी शुरू कर दिया बिकॉज द एनरिचमेंट ऑफ द ब्लड, उसका ब्लड इंक्रीज हो, उसमें थोड़ा हीमोग्लोबिन का प्रपोर्शन बढ़े. तो फिर क्या हुआ देखो, वो जो डॉग को 2 टाइम्स यानी मील के साथ 2 ग्लासेस जितना वाइन वो लोग देते थे, इतनी बड़ी अगर बॉटल आ रही है तो बाद में क्या करें. डॉक्टर लोग भी पीते थे, उसके स्टाफ भी पीता था. मीन्स व्हाट, डॉक्टर के भी मजे थे, उसके स्टाफ के भी मजे थे. ये मैंने तुम लोगों को बता दिया. फिर आगे क्या हुआ. वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट द फाइनल एज ऑन द ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड एविडेंटली ड्रंक. ट्रिकी भी पी रहा था ब्रांडी, डॉक्टर भी पी रहे थे, ट्रिकी में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा था, डॉक्टर के स्टाफ को भी अच्छा लग रहा था. एंड there were days of deep content, starting well with extra eggs in the morning, improved the and sustained by the midday wine, and finishing the luxuriously round bag with the brandy. उनका रूटीन यहाँ पे दिया हुआ है. In the morning with the dog, including all the meals that doggies and the doctor and the staff all were used to take breakfast with wine. Then after at the time of meal also they used to take the wine, and at the time of night means after the dinner they are enjoying the brandy. और बाद में उनका लाइफ भी लग्जरियस हो गया देखो. फिर it was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest for little time. डॉक्टर को ऐसा लगा कि इसको मैं टेम्पटेड का मीनिंग होता है क्या, अट्रैक्टेड, कि इसको मैं थोड़े समय के लिए ज़्यादा रख लेता हूँ क्योंकि ये मज़े आ रहे हैं, एग्स भी आ रहे हैं, वाइन भी आ रहे हैं, अभी तो ब्रांडी भी शुरू हो गई, तो मज़े ही मज़े हैं. फिर क्या हुआ देखो. बट compared to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting the for collection. फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरी ग्रीडीनेस की वजह से या मेरे टेम्पटेशन की वजह से मैं किसी का नुकसान नहीं कर सकता. बिकॉज मिस्टर हेरियोट न्यू वेरी वेल, उनको अच्छी तरह से पता था कि ये ट्रिकी के बिना मिसेस पैम्परे जो है वो जी नहीं पाएगी. वो बहुत ही मीन्स
डिसअपॉइंट हो गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी उनके घर पे कब वापस आएगा, बार बार उनको यही लग रहा था कि ट्रिकी उनके पास कब वापस आएगा। फिर क्या हुआ देखो, एंड विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming back metal drew up outside the surgery and the shopper opened the door. अभी shopper means a person kept for especially opening the door of a car. shopper means एक पर्सन जो सिर्फ कार का दरवाजा ही ओपन करे, उसको हम लोग शॉपर बोलेंगे। विद इन अ मिनट्स मिसेस पैम्परी रीच्ड इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आ गए और शॉपर बाहर आया, उन्होंने डोर खोला और अंदर कार के अंदर मिसेस पैम्परी जो है वो बैठे हुए थे। एंड मिसेस पैम्परी ऑलमोस्ट आई कुड जस्ट टेक द फिगर ऑफ मिसेस पैम्परी। जब डॉक्टर ने मिसेस पैम्परी की ओर देखा तो उनको ऐसा लगा कि मिसेस पैम्परी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन and the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriot, to tell me the truth, is he really better? जब मिसेस पैम्परी ने डॉक्टर को भी देखा तो उसने पहले पूछा कि प्लीज मुझे बताइए कि सच में मेरा ट्रिकी जो बहुत अच्छा फील कर रहा है, उसके अंदर वो रिकवरी हुई है। ऐसे वो किसको बोल रही है? मिस्टर हैरियट को बोल रही है। एंड हैरियट सेड यस ही इज फाइन। उन्होंने कहा हाँ वो तो बिल्कुल मस्त है। There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. वो बोल रहे कि आपको कार से उतरने की जरूरत नहीं, मैं खुद उसको लेके आता हूँ। तो मिस्टर हैरियट went inside and bring the dog. फिर उसको डॉग ट्रिकी को वो बाहर ले गए। और फिर बाद में क्या हुआ देखो, I walked through the house into the garden. A mass of dogs was fluttering round and round the lawn, and in their midst, ears flapping and waving, was the little golden figure of Tricky. जब मिस्टर हैरियट डॉगों को लेने के लिए गए, जैसे मैंने तुम लोगों को बोला फ्रॉम द लास्ट 15 डेज ट्रिकी वाज इन द हॉस्पिटल, 15 डेज से वो हॉस्पिटल में था, तो वो हॉस्पिटल का जो एटमॉस्फेयर था उसके अंदर घुल मिल गया था, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगने लगा। हाँ, हम लोग ऐसा नहीं मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि शायद वो मिसेस पैम्परी को भूल गया हो, नो, बट उसको हॉस्पिटल का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत अच्छा लगने लगा। तो जब हैरियट उसको लेने गए तो उन्होंने देखा कि वो जो ट्रिकी है इट इज अ स्मॉल गोल्डन फिगर, यानी वो गोल्डन, उसकी स्किन का कलर गोल्डन था, स्मॉल उसकी छोटी साइज थी एज कम्पेयर टू अदर डॉग, उनके साथ वो खेल रहा था। मिस्टर हैरियट ने देखा तो उनको भी ऐसा लगा कि देखो यहाँ पे वो कितना घुल मिल गया है, दूसरे एनिमल्स के साथ वो किस तरह से खेल रहा है। इन 2 weeks he had up well with the means transformed into a lean hard muscle animal। मिस डॉक्टर ने सोचा कि 2 weeks में, ये पहले इतना वीक था, ओके, इतना मीन्स उसके अंदर बिल्कुल ही पावर नहीं थी, और आज वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, उसके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि वो इजीली दूसरे डॉग्स के साथ घूम रहा है, दौड़ रहा है, यानी कोई सोच भी नहीं सकता कि ये 15 दिन पहले ये डॉगी इतना बीमार था। और विद इन 15 डेज यानी 2 weeks के उसको टाइम पीरियड लगा, उसके अंदर तो डॉगी बहुत ही मस्त हो गया। एंड ही वाज कीपिंग अप वेल विद द बैक स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, ही चेस्ट ऑलमोस्ट रशिंग द ग्राउंड। मस्त दौड़ रहा था, एकदम फास्ट। पहले वो उसको चलना भी मुश्किल था, और 15 दिन के बाद उसके अंदर इतना इम्प्रूवमेंट देख के डॉक्टर भी खुद बहुत ही फील हैप्पी, उनको भी खुशी हुई। फिर आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू फ्रंट ऑफ द हाउस। द शॉपर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। जब मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को पिपेज कर ट्रिकी एंड कैरीड आउट टुवर्ड्स द कार, उसको वो लेके गए कार की ओर। शॉपर जब उसने अभी भी दरवाजा ओपन करके रखा था, अंदर मिसेस पैम्परी जो है वो वेट कर रही थी कि कब ट्रिकी आए और कब उनको वो दिखाई दे और पकड़े। जब वो वहाँ पे गए एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टूक ऑफ फ्रॉम माय आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पैम्परीज लैप। एज सून एज ट्रिकी हैड सीन मिसेस पैम्परी ही जस्ट jumped out from the hands of Mr. Harriot and went towards Mrs. Pampery। जैसे ही ट्रिकी ने देखा कि मेरी मिसेस पैम्परी जो है वो कार में बैठे, उसका ध्यान दूर से ही गया, तुरंत उसने जंप लगाई उस मिस्टर हैरियट के हाथों में से, और वो कहाँ पहुंच गया? मिसेस पैम्परी के लैब के अंदर पहुंच गया। उनको उसको बहुत अच्छा लगा। फिर क्या होता है देखो, शी गेव अ स्टार्टर्ड ओ एंड देन had to defend herself as she swan over her, licking her face and barking। जैसे ही ट्रिकी ने देखा वो तुरंत मिसेस पैम्परी के पास चला गया, उसने उनके फेस को लिक किया। तुमको पता है कुत्तों को हैबिट होती है, और बाद में वो बार्किंग भी करने लगा, क्योंकि कितने 15 दिनों के बाद वो ट्रिकी जो है वो मिसेस पैम्परी से मिल रहा था। ये कोई छोटा समय नहीं था स्टूडेंट्स, क्योंकि
ट्रिकी के बिना एक मिनट नहीं रह सकती, वो 15 दिन कैसे रही होगी, जस्ट इमेजिन। बस वही यहाँ पे फील करने जैसा है कि ट्रिकी को भी ऐसे लगा होगा, भले वो दूसरे डॉग के साथ घुल मिल गया था, पर कहीं पे उसको मिसेस पेम्फ्रे की याद तो आती ही होगी। और उसी की वजह से जब जैसे ही वी कैन से मिसेस पेम्फ्रे को देखा तो वो दौड़ के मिसेस पेम्फ्रे के लैप में बैठ गया और उसने उनको लिकिंग अप करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बार्किंग स्टार्ट कर दिया। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट I helped the shopper to bring out the beds, toys, cushions, coats, balls, and none of which had been used. देखो, she was busy with Ricky. वो रिकी के साथ मिसेस पेम्फ्रे जो बिजी हो गए, एक दूसरे से लैप बैट करने लगे। उतने टाइम में जो शॉपर था उसकी हेल्प से डॉक्टर ने रिकी की सारी चीजें कार में रखने के लिए बोला, जो उन्होंने यूज नहीं की थी। एक उसमें से एक भी चीज उन्होंने यूज नहीं की थी, क्योंकि उनको पता है रिकी को ये चीजों की जरूरत नहीं है, उसको एक्सरसाइज की जरूरत है, खुले माहौल की जरूरत है, जो उसको कहाँ मिला, हॉस्पिटल में मिला, बस वही चाहिए था। इसलिए डॉक्टर यहाँ पे बोल रहा है कि जब मिसेस पेम्फ्रे जो थे वो आप रिकी के साथ प्यार कर रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, तब उन्होंने सारी चीजें, टॉयज, कुशन्स, उसके जो भी चीजें थी, कोट, बॉल्स, सारी चीजों को शॉपर के हेल्प के थ्रू कार के अंदर फिर से रख दिया। फिर क्या हुआ देखो, As car moved away, Mrs. Pamphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. कार का डोर तो बंद कर दिया, उसने ग्लास ओपन किया। जब उसने कार में से देखा, मिसेस पेम्फ्रे की आंखों में डॉक्टर ने देखा पानी था। उनको मीन्स हम लोग बोल सकते कि वो दुख के आंसू नहीं थे, इट वाज द जॉयफुल टीयर्स, उसके खुशी के आंसू थे। जब उन्होंने देखा कि ये ट्रिकी जो है, मेरा ट्रिकी बिल्कुल मरने की हालत में था, पर पता नहीं इट्स अ ट्रिम ऑफ सर्जरी, विक्ट्री ऑफ सर्जरी, आपने डॉक्टर ऐसे ट्रीटमेंट की, ऐसे उसको सर्जरी प्रोवाइड की। सर्जरी यहाँ पे तुम लोग ऑपरेशन नहीं लेना, सर्जरी मीन्स ट्रीटमेंट। ऐसी सर्जरी की कि वो सर्जरी में से जादू हो गए, जस्ट मिरेकल। और मेरा डॉगी जो है वो पहले से काफ़ी अच्छा हो गया। सो उसकी आंखों में जब उन्होंने डॉक्टर ने देखा, आंखों में से पानी निकल रहा था, बट वो खुश थी बहुत, क्योंकि उसको एक सेटिस्फैक्शन था कि मेरा डॉगी जो है बहुत अच्छा हो गया है। एंड उसके बाद ओ मिस्टर हैरियो, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज ट्रिम्फोर्ड सर्जरी। वो बोलती है कि मिस्टर हैरियो, मैं आपकी कभी जो भी आपने आज करके दिखाया है मिरेकल, उसको मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि ट्रिकी के ऊपर आपने जो भी किया, आई डोंट नो, आपने जो भी उसको ट्रीटमेंट दी, बट एक दिस इज जस्ट अ ट्रिम्फोर्ड सर्जरी, वो एक जादू था, एक मिरेकल था, जिसकी वजह से मेरा ट्रिकी जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। सो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, पर तुमको यहाँ पे एक बात पता चली होगी, जैसे मैंने तुमको मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि अगर हम लोगों को पेट रखना है तो उसको ऐसे बांध के नहीं रखो, उसको थोड़ा फ्रीडम दो, उसको थोड़ा आसपास का एरिया दूसरे डॉग्स के साथ घुल मिलने दो। तो जैसे तुम लोग घर के अंदर भले उसको लग्जरियस आइटम्स प्रोवाइड करते हो, पर जब तुम लोग उसको ऐसे बाहर के एटमोस्फियर में रखोगे तो हमारा जो पेट होता है वो ज़्यादा फिट बनता है, हेल्दी बनता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, समझ में आ रहा है, जैसे ट्रिकी के अंदर आया। तो ये सारी चीज़ें हमें बताई गई है कि भले पेट रखो और उसको एकदम लड्डू की तरह मत रखो, थोड़ा फ्री घूमने दो ताकि वो भी फ्री हो सके। तो यहाँ पे ये चैप्टर तो कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, देख लेना। तो जो भी क्वेश्चन आंसर्स है उसको तुमको अच्छी तरह से घर पे लिखना है। बट देखो, जैसे ही तुम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, जैसे मेरा एक्सप्लेनेशन हो गया, तो ये वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। तो ये जो लेसन हमने कंप्लीट किया उसको तुमको माइन्यूटली रीड करना है विथ द नेम ऑफ द ऑथर। या तो इजी है, चलो ऑथर ने ही ये चैप्टर लिखा हुआ है, जेम्स हैरियो, वही उसके ऑथर है, तो तुम लोगों को भी ऑथर के नाम के साथ, क्योंकि काफ़ी सारी माइक्रो रीडिंग्स तुमको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुमको विदाउट टेक्स्ट बुक पढ़ा है, सिर्फ पीछे का कुछ टॉपिक जो एंडिंग पार्ट था 1/4 उसके लिए मैंने टेक्स्ट बुक यूज की, क्योंकि वो बोलना ज़रूरी था। बाकी तुम लोगों को खुद से रीड करना है, जैसे ही रीड कर लेते हो एज यू आर इन 10th यू नो वेरी वेल, उसको तुरंत लिखना है। हो सके तो अपने आप लिखने की कोशिश करो, तुम्हारा इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा लिखने में। इंट्रोडक्शन के साथ तुम लोगों को सप्लीमेंट्री के आंसर्स लिखने हैं। तो विद दिस यहाँ पे मैं लेक्चर एंड करती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।